Namaskar and a very happy Independence Day to all our viewers. This Independence Day, let's take you through our journey of freedom and progress. But before we dive in, let's revisit how far we have come as a nation. On the eve of India's independence, on the midnight of the 14th and 15th of August 1947, Lord Mountbatten said, "On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. India climbs another global rung in the economic race. Wish you a very happy Independence Day to all my viewers. Freedom is not in our just history, it lives in our people. Let's hear their voices. Ma'am, how do you think youth can protect our freedom in today's days? See, youth today is a significant demographic dividend, especially in a country of India with 140 crores plus population. When I talk about protecting the freedom and the youth's contribution, youth definitely can significantly contribute by protecting the human rights. They can take the minorities' issues forward. They can significantly contribute towards social inclusiveness. We can talk about economic empowerment. We could talk about financial inclusions. All these factors, when taken up by the youth, are going to contribute to the freedom in mind, body, and the soul. Hello, ma'am. What does freedom mean to you? Hello. First of all, happy Independence Day. According to me, freedom is where the women, children, elderly people, they walk freely without no fear. ये नहीं सोचें कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. Now, if you see the recent topic where SC has given the verdict for the voiceless, so they have their own dignity, the right to live where they are living right now. So freedom, according to me, is they walk freely. Everybody walk freely. It is not about, कि आप उनको उठाकर कहीं dog pounds में डाल दें. Where we can breathe freely. We don't have to worry about the AQI and the so-called pollution. So that is freedom mean to me. Hello, sir. Sir, how do you think youth can protect our freedom? See, freedom की अगर बात करें तो our India has a long history of freedom struggle and all, right? बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है आज़ादी को पाने के लिए. खैर, आज़ाद अब हम भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से हम बंधे हुए हैं. यूथ की बात आपने की, यूथ फ़ोन से बंधा हुआ है. उनको सिर्फ रील बनाने के लिए आज़ाद होना है, ठीक है. मैं ये नहीं कहता कि मेजॉरिटी मतलब सारा का सारा यूथ ऐसा है. मेजॉरिटी ऑफ यूथ इज़ मतलब अर्बन एरिया की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर रील में जकड़ा हुआ नज़र आता है मुझे. रील्स हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टूल्स हो गए. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उनको अपनी हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है कि किस दौर से हम गुज़र के आए हैं. अगर वो हिस्ट्री नहीं पता होगा, उनका जो ज़ख्म खाए हैं, भारत माता अगर हम बोलते हैं, भारत माता की जय अगर बोलते हैं, तो भारत माता ने जो ज़ख्म खाए हैं वो ज़ख्मों को
समझना ज़रूरी है, ना कि उन पर नमक डालना। आई बिलीव आजकल के जो यूथ्स हैं वो अपने फंडामेंटल राइट्स की ज़्यादा बात करते हैं। अगर वो ड्यूटी फुलफ़िल करें, उनकी बातें करें, उन्हें लोगों को अपनी ड्यूटीज़ बताएं और उनकी ड्यूटीज़, तो हमारा फ्रीडम प्रोटेक्ट हो सकता है। फ्रीडम मेरे लिए, फ्रीडम का मतलब है कि जैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहूँ वैसे कर सकूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ, और जो मैं बोलना चाहूँ वो कह सकूँ। एंड लकीली इफ़ आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हूँ। दो गवर्नमेंट स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव इटसेल्फ इन मैनी केसेस, फॉर एग्जाम्पल द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड द एथनिसिटी ऑफ द वुमेन एज वी हैव सीन, एंड ऑल्सो वर्क प्लेस में सिक्योरिटी है कि नहीं, दैट वुड आई लाइक टू गवर्नमेंट टू फोकस मोर अपॉन। कुछ तो बात है इस मिट्टी में जो हर दिल को आज़ादी की पहचान कराती है। यह आज़ादी ही तो है जो हमें हमेशा साथ लाती है। नमस्कार, मैं अंजलि और मेरी तरफ से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी आज़ादी के 79वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है उन अनगिनत बलिदानों की जिनकी वजह से हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हर साल यह दिन न सिर्फ तिरंगा लहराने का बल्कि उन अनसुने नायकों को याद करने का भी होता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था। तो आइए आज हम ऐसे ही दो महान वीरों मातंगिनी हाजरा और पीर अली खान की बात करेंगे, जिनके साहस की कहानियां इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल की धरती से उठी एक ऐसी लौथी मातंगिनी हाजरा जिन्हें प्यार से लोग गांधी बूढ़ी भी कहते थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था, तब इस 73 वर्ष की वीरांगना ने तमलूक थाने पर तिरंगा फहराने का बीड़ा उठाया था। अंग्रेजों की गोलियों का सीने पर सामना करते हुए भी उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उनकी इस शहादत ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश को आज़ादी की लड़ाई के लिए एक नई प्रेरणा दी। दूसरे महान वीर हैं पीर अली खान। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसमें पीर अली खान ने पटना की धरती से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। पेशे से तो वे एक किताब विक्रेता थे, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान को क्रांति का केंद्र बना लिया और उनके नेतृत्व में पटना में हुई क्रांति ने अंग्रेजों को हिला दिया था। पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया और शहादत को गले लगा लिया। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि अगर आपको भारत को एक वर्ड में बयां करना हो तो वो क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से भारत को एक वर्ड में बयान करना मतलब डुअलिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, एक बहुत ट्रेडिशंस हैं यहाँ पे जो साथ में मिलकर रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भारत को कैसे बोले, तो मेरे हिसाब से हम बोलेंगे एकता, क्योंकि भारत की एक पहचान है कि भारत में इतने सारे लोग रहते हैं अलग अलग कल्चर के, अलग अलग ट्रेडिशंस के, तो वो सब एक साथ मिल के रहते हैं, सब करते हैं, तो इस हिसाब से एकता। मेरे हिसाब से करप्ट कहना सही रहेगा। और करप्ट क्यों? क्योंकि अभी जितना देखा जा रहा है हर जगह रिश्वतखोरी ही चल रही है और रिश्वतखोरी के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। जिनके पास पैसा है वही सब कर रहे हैं, बाकी गरीबों को कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक ठाक है, मतलब कुछ अच्छा भी नहीं कह सकते और कुछ बुरा भी नहीं कह सकते। मतलब इक्वलिटी कहने वाली बात है लेकिन होती नहीं है इक्वलिटी। मतलब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं लेकिन काम के टाइम पे कोई साथ नहीं होता। ऐसे तो ठीक है लेकिन एकता नहीं है। ये जो बड़े छोटे थोड़ा अच्छा वातावरण होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, ये नहीं है। और मोटा मोटी जो है ठीक ही है, लेकिन ये छोटे बड़े का विचार अलग अलग है। आपने भिकाजी कामा प्लेस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है, वो दरअसल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में साहस, त्याग और अटूट संकल्प का पर्याय है। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो के द्वारा।
24 सितंबर 1861 बॉम्बे में एक पारसी परिवार में जन्मी कामा ने अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन से शिक्षा पाई। विवाह उनका हुआ रुस्तम कामा से, जो कि एक ब्रिटिश समर्थक वकील थे। लेकिन मैडम कामा के हृदय में बस एक ही पर्याय था, भारत की आजादी। लेकिन 1896 में बंबई में प्लेग फैला। भिकाजी कामा बीमारों की सेवा के लिए खुद कूद पड़ी, लेकिन स्वयं भी संक्रमित हो गई। उपचार के लिए वे 1902 में लंदन गई, जहां उनका परिचय दादा भाई नौरोजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से हुआ और यहीं उनकी क्रांतिकारी यात्रा तेज हो गई। 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने विदेशी धरती पर पहली बार भारत का स्वतंत्रता ध्वज फहराया। ध्वज हरे, पीले और लाल रंग से सजा था, क्रमशः इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रतीक। उनकी भारत आजाद होगा की गर्जना पूरी दुनिया को सुनाई दी। उन्होंने 1905 में पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, क्रांतिकारियों को सहारा दिया, प्रतिबंधित साहित्य वंदे मातरम फैलाया, अखबार वंदे मातरम और पत्रिका मदन का तलवार निकाली, जो शहीद मदनलाल धिंगरा को समर्पित थी। मैडम कामा केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, महिला समानता की प्रबल आवाज भी थी। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति अनाथ लड़कियों के लिए अवाबाई पेटेंट ट्रस्ट को दान कर दी। उनके नाम पर सड़कें, संस्थान और 1997 में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGAS भिकाजी कामा भी नामित हुआ। 1962 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। हालांकि अगस्त 1936 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उनका फहराया हुआ ध्वज आज भी हर भारतीय के दिल में लहराता है। आपको बता दें कि मैडम कामा ने केवल ध्वज ही नहीं फहराया, बल्कि उन्होंने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगा दिया। Those dreams are our responsibility. Let's close today's journey with a promise and our national anthem.